All right. Now we can see this question. You have to do it in homework, and then we'll discuss in the next class. So this is useful relation. If one is known, other can be found out easily without knowing the mass. Now, how do we define the potential energy? Potential energy, you know, what is the meaning of word potential? Word potential suggests possibility or capacity for action. Potential energy means stored energy. For example, stretched bow string possesses potential energy. When released, arrow flies off with a great speed. And ऐसे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम में. When you release it from here, it will fly off with a great speed. So this we can call it elastic potential energy. Earth's crust has the fault lines, which are like compressed springs. Earthquakes are result when fault lines readjust. And उनकी जो crust है वो they are like a compressed spring. When they readjust their crust, which are called fault lines, so there is the shaking of the earth. Because of that, earthquakes are generated. And we have the potential energy in the object at height. And suppose ground से हमने यहाँ पे object को रखा, so it has potential energy, gravitational potential energy, which is mgh, है ना. So we have the gravitational potential energy, we have the elastic potential energy, we have the electrostatic potential energy. At least 3 potential energy we'll be discussing throughout the course. Elastic, which will be the springs, है ना, or strings. Then gravitational potential energy we will be discussing in great detail, and electrostatics in 12th. So potential energy is the stored energy by virtue of its position or configuration of body. Configuration means suppose ये इसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया. स्प्रिंग को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, compressed configuration है, or elongated like this, so they will have the elastic potential energy. Position means object को हमने high position पे रख दिया, so they will have the gravitational potential energy. So it is the stored energy by virtue of the position or configuration. इसको हमने compress किया हुआ है ना, compressed configuration है ना, or compressed position also we call it. If object of mass m is at small height h, then its gravitational potential energy is given by mgh. There are elastic potential energy and electrostatic potential energy. So these will be studying in this chapter itself, and ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. So potential energy is the stored energy which has the potential to do the work. All three, this spring or bows, they have potential to do work. Height, objects at height, they have the gravitational potential energy. They also have the potential to do work. Or if you release them, this object will come down, work done on they will be able to do the work. So it is the nothing but potential energy is the stored energy due to position or configuration
and so on. Now we are going to define, acha, mechanical energy is what? Already we have defined. Mechanical energy is sum of Ke and P. Suppose this is the object, it is moving like this, connected to the spring. तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. दोनों में मिला के सिस्टम में देयर विल बी मैकेनिकल एनर्जी. मास एंड स्प्रिंग सिस्टम विल हैव द मैकेनिकल एनर्जी. आर ऑब्जेक्ट एट हाइट, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर पहुंच गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी है mgh. तो ऑन द वे इट विल हैव बोथ द एनर्जीज, बट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड and it will have only kinetic energy. So sum of both is called mechanical energy, or sometimes we call it total energy also. Here total energy means Ke plus P. Conservative forces. Conservative forces, how do we define them? What are those forces? And so far we have seen forces only, gravitational forces, electrical forces, nuclear forces, electromagnetic forces, tension and all. Friction is the electromagnetic force. Frictional forces, which is electromagnetic. All right. So what are these conservative forces now? So conservative forces will be one of them only, जो मैंने अभी बताया. So what is the criteria to select that particular force is conservative or non-conservative? So let's see how do we define the conservative forces. Those forces in which work done depends upon initial and final positions only, not on the path followed by the object. Suppose object is thrown up, it comes back here. The initial position and final positions are same. Displacement is 0. Work done will be 0. It means one side there will be negative work done, other side there will be positive work done, then only it will be 0. Such type of forces in which work done is 0 for closed loop. Work done will be 0 in closed loop because it depends initial and final position. Closed loop में it comes back to initial position, no displacement. Displacement is 0. Because initial and final position पर ही depend करेगा which way, which path it has followed, है ना? Which path it has followed doesn't matter. Initial and final position पर depend करेगा. It means one side it will be positive, other side it will be negative. So these forces are what? Gravitational forces, electrostatic forces, spring forces. अभी जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, वही ये है, that forces which can store the potential energy, है ना, that work done. तो वही conservative forces, because energy is conserved. They are called conservative since energy remains conserved. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट को फेंकते. काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई. फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती. टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट किसी पाथ पर, किसी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ.
ठीक है, तो कंजर्व रहती है, इसीलिए नाम आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू सच फोर्सेस ओनली। ये जो फोर्सेस है ना, इनके अंदर ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं उसको, एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस इफ दे आर देयर, then only potential energy will be there, because we can save it, we can store it, we can convert it into other form. So these are the only three forces which are conservative: gravitational, electrical and spring forces, or elastic forces बोल सकते हैं इसको। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसके अपोजिट हो जाएंगे, those forces in which work done depends on the path followed by the object. For example, frictional force or viscous force. Object suppose इधर गया, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, वर्क डन माइनस आएगा, सपोज -5 जूल आ गया, और सेम पाथ से ऑब्जेक्ट इधर आया, फ्रिक्शन अभी इधर लगेगा, फिर से -5 जूल, अगर सेम पाथ से आया, लंबे पाथ से आया तो इट विल बी मोर देन -5 इन मैग्नीट्यूड, बट सेम पाथ से वापस आया अगेन, तो दोनों ऐड हो गए, -10 हो गए, ग्रेविटी में 0 हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, और एनर्जी सेव भी नहीं कर सकते, पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाती। फ्रिक्शनल फोर्स की एनर्जी सेव होती क्या? नहीं, it goes on converting into heat. Such forces are called non-conservative forces. Energy cannot be conserved in these forces. It will be dissipating forces. Energy dissipate हो जाएगी, energy radiate हो जाएगी। तो frictional force is non-conservative. Gravitational force is conservative. देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां उठाया, सॉरी सपोज हमने, ओके ठीक है, यहां से यहां ले गए, तो ग्रेविटी ने -5 जूल वर्क किया, और अगर ऐसे लेके जाएंगे तभी भी -5 जूल ही रहेगा, और ऐसे लेके आएंगे तभी भी -5 जूल ही करना पड़ेगा। किसी भी पाथ से यहाँ तक जाओ, डायरेक्ट जाओ या ट्राइंगल बना के जाओ या सर्कल बना के जाओ, कैसे भी जाओ, कर्व पाथ से जाओ, यू हैव टू डू -5 जूल। मीन्स यू नॉट यू कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, जस्ट लेट मी गिव यू अदर एग्जांपल। सपोज gravity, you are climbing from the ground floor to the 3rd floor. You go up to 3rd floor, whatever the gravity, I'm not talking about your work done, whatever the gravity is doing on work on you will be same even if you go to the 10th floor and come back to the 3rd floor. Final position same hai. So gravity is going to do that much work. You yourself on your body may be doing more work. Your fat will burn. You are doing more work on your body, but gravity is also doing the work on you because you are the mass mgh, you are climbing the height h. Whether you going up and then coming down to the 3rd floor, mgh remains same in that case. Directly going to 3rd floor and staying there, or going up and then coming down to the 3rd floor, vertical height remains same. So gravity in both the cases will be doing work, same work, if you start your journey from ground floor and end your journey to the 3rd floor. But you may be doing more work on your body. That is your work, and gravity will be doing same work. Clear? That's what I want to highlight. Whether you go like this, or you go like this, or you go like this, or you go like this. In all the cases, work done will be mgh. Work done निकलना है, so force will be, work done will be force into displacement.
फोर्स mg ग्रेविटी का, डिस्प्लेसमेंट जो h है वो फाइनल हाइट कितनी है, वर्टिकल हाइट कितनी है, दैट मैटर्स। अगर यहाँ से भी ऐसे भी आए ना, देखो you take the object like this or like this, same height, work done by gravity will be same in both cases. ठीक है, क्लियर। कंजर्वेटिव जैसे एक क्वेश्चन है, ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, नॉट इन एनसीईआरटी बुक, अदर बुक, रेसनी क्वालिटी में। देखो उसमें क्या था क्वेश्चन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट गया, 5 जूल वर्क हुआ है ना, फिर वो ऐसे वापस आया पाथ 1 से, पाथ 1 -5 जूल वर्क करना पड़ा उसी फोर्स को, जो भी फोर्स है, बट इधर से आया पाथ 2 से, तो फाइनल आए द इनिशियल पोजीशन। इज द फोर्स कंजर्वेटिव, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गए 5 जूल, फिर पाथ 1 से आए तो -5 जूल, नेट वर्क डन इज 0, क्लोज लूप में वर्क डन 0 हो गया। बट इस पाथ से आए तो -6 जूल वर्क करना पड़ा, इसमें तो 0 नहीं हो रहा इस पाथ से। क्या ये वाला पाथ कंजर्वेटिव और ये वाला पाथ कंजर्वेटिव? पाथ कंजर्वेटिव नहीं होता, फोर्स कंजर्वेटिव होता। क्या इधर जाने से फोर्स कंजर्वेटिव है, इधर से आने से फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है? तो क्वेश्चन है, इज द फोर्स कंजर्वेटिव, यस और नो? इज द फोर्स कंजर्वेटिव? आंसर इज नो, बिकॉज फॉर एनी पाथ, यू पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इधर से आएंगे तभी -4 -5, इधर से भी -5 होता है। in any through any path you come, net work done should be 0, then only it is conservative force is involved in this case. No, in this case no conservative force is not involved, because one path it is giving 0, other path it is giving non-zero. Through any path it should give 0 for closed loop, हमने लिखा था closed loop के लिए 0 देना चाहिए। Zero for closed loop, this is non-conservative. Just we'll have 5 more minutes, 5 or 10 more minutes, then we'll wind up. Clear? तो ये क्वेश्चंस जो है इस तरह से तुम्हें पूछ सकते हैं, योर नॉलेज कैन बी टेस्टेड अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट द स्प्रिंग्स। इन आवर कोर्स वी आर द लाइट स्प्रिंग्स, जिसका मास विल बी नेग्लिजिबल थ्रू आउट द all the chapters. The springs are, you have seen, we use it in the pen also, है ना, जॉटर पेन वगैरह में रिफिल के अंदर डालते हैं, तो दे कैन स्टोर द एनर्जी, दे प्रोड्यूस द रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। जैसे ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं तो उसमें एक रिटर्न स्प्रिंग होता है विच इज नॉट विजिबल, व्हेन यू रिमूव योर फुट फ्रॉम देयर इट कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन, ब्रेक्स आर डिसएंगेज्ड, इवन एक्टिवा वगैरह में भी होते हैं ना। The springs are producing the restoring force, or they can save the energy also. Wrist watch में जो पुरानी है, that pendulum clock, उसमें old watches में you see we wind the spring every day and then it runs for the, उसमें potential energy store हो जाती है, फिर वो kinetic energy में convert होती है। तो springs have various uses. Suspension system of car, two-wheeler, train, they have all involving the springs to save us from the jerks of the road, है ना, due to the uneven roads and all. So wide uses of the springs are there, but we are not seeing the uses. We are seeing the properties of the springs. कौन से terms involved हैं, whether it stores the energy, yes, how much energy is stored, potential energy in this. So we are going to learn about the springs. तो suppose F is the applied force here, कुछ terms सीखते हैं इसमें, and X is the change in length. Suppose यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, X is the
change in length of the spring from its natural length. Natural length कुछ इतनी है, यहां तक की थी है ना, और अभी यहां तक पहुंच गई, पहले यहां तक थी, तो x हो गई। नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ L नॉट है सपोज, which we are not discussing. Natural length suppose normal रख दो स्प्रिंग को विदाउट पुलिंग, तो नेचुरल लेंथ होती है उसकी, यू नो यू हैव सीन, जब तुम हाथ में स्प्रिंग लेते हैं, ये जॉट रिफिल की है ना, अपने जॉटर रिफिल के अंदर जो रहती है होल्ड करके, जब हम उसको पेन के अंदर डाल देते टाइट करते उसको, तो वो कॉम्प्रेस हो जाती है ना, तो जो नेचुरल लेंथ से जो कॉम्प्रेस हुई या इलोंगेट हुई, दैट विल बी एक्स, which is directly proportional to force applied. More force you apply, ये वाला फोर्स नहीं देखना है अभी, दिस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फोर्स फिलहाल, ठीक है। तो मोर फोर्स यू अप्लाई, मोर चेंज ऑफ लेंथ विल टेक प्लेस। F is equal to constant of proportionality is called K, तो F is equal to KX or K is equal to F by X. F is the force applied, X is the change in length. तो K is known here as a force constant or spring constant. K जो है ना, K का नाम क्या है? K is the spring constant, sometimes also written as a force constant. Constant है ये, हर स्प्रिंग का अपना अपना फोर्स कांस्टेंट होगा। कैसे डिफाइन करेंगे? इस फार्मूला से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ, फोर्स पर यूनिट चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यूनिट ऑफ K will be Newton per meter. If K is small, then spring is soft, said to be soft. जैसे रिफिल की स्प्रिंग रहती है, पेन में रहती है ना। If K is large, then spring is said to be stiff, hard रहेगी। K more रहेगा तो स्प्रिंग विल बी हार्ड, जैसे रेलवे में यूज करते हैं, रेलवे इंजिन में, कार वगैरह में यूज करते हैं, एंड टू व्हीलर के जो हैंडल्स होते हैं, वो अपना जो हैंडल्स के नीचे जो बार रहती है ना, उसमें भी लगते हैं वो, बाइक में पर्टिकुलरली, एक्टिवा वगैरह में विजिबल नहीं होती, तो उनकी जो ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, ट्रेन में वो स्टिफ रहती है स्प्रिंग। ऑलराइट, और Fs इज द स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। जब हम खींचते हैं तो उसमें स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की वजह से स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। एट इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होंगे, जितना हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उतना स्प्रिंग फोर्स तभी तो रुक जाएगा ये पॉइंट, स्प्रिंग विल कम टू द रेस्ट, अदरवाइज इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स। अगर ये फोर्स बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा, अगर तुम ढीला छोड़ दोगे तो इधर वापस जाएगा। बट इक्विलिब्रियम में बोथ विल बी इक्वल एंड अपोजिट, Fs विल बी इक्वल टू माइनस F, और F की वैल्यू कितनी है? Kx है, तो स्प्रिंग फोर्स में माइनस Kx आता है। अप्लाइड फोर्स में जनरली न्यूमेरिकल में हम ये यूज करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, बट यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे स्प्रिंग फोर्स का, एंड दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इसको हुक्स लॉ बोल सकते हैं, इसको भी हम हुक्स लॉ बोल सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लेंथ। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लेंथ, माइनस साइन मींस स्प्रिंग फोर्स इधर है, चेंज ऑफ लेंथ इधर है, इसलिए माइनस आता है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जब कॉम्प्रेस करेंगे उसको, देखो जब कॉम्प्रेस करेंगे तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है और स्प्रिंग फोर्स इधर होगा, Fs वापस जाने की टेंडेंसी। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट में रहते हैं। X is the change of length, in other words we call it displacement of that particular end, one end is fixed, इस एंड का जो किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इसलिए माइनस होता है। अप्लाइड फोर्स में सेम डायरेक्शन में रहते हैं। न्यूमेरिकल्स में वी आर गोइंग टू यूज दिस, नॉट दिस, ठीक है। और लाइट स्प्रिंग इज इन अवर कोर्स, लाइट स्प्रिंग in our course, only light spring, no mass, that is negligible mass.
ठीक है, तो x क्या है? चेंज ऑफ लेंथ फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड आल्सो, elongated आल्सो, चेंज ऑफ लेंथ में दोनों आ गया। ठीक है, तो ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये स्प्रिंग्स के काम आएंगे। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं आज। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना वर्क करती है? देखो सपोज हमने ये ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ये तो नेचुरल लेंथ हो गई इसकी, स्प्रिंग फोर्स इज 0, एक्स इज 0, नो स्प्रिंग फोर्स, बोथ आर इंटरकनेक्टेड है, एक्स 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने उसको पुल किया तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अभी हमने जो डिस्कस किया था वही पॉइंट है, F is equal to minus kx if we pull the block। अच्छा ये वेरिएबल फोर्स है, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालना पड़ेगा, एंड एरिया से भी मिलता है, तो दोनों से देखो उन्होंने किया। इफ वी पुल द ब्लॉक आउटवर्ड, एक्स एम इज द एक्सटेंशन, एक्स एम जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो एक्स एम एक्सटेंशन, देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एफ की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, देखो। ओके, एक काम करते हैं, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एफ एफ एस, उसकी वैल्यू या तो एंगल के टर्म में लिखो कि एफ, इसका मॉड लिखो और फिर cos 180 लिखो। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है तो मैं भी वही लिख देता हूँ, 180 नहीं लिख के डायरेक्ट लिख दिया, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे, बट नो प्रॉब्लम, वील फॉलो द। एफ एक्स की वैल्यू कितनी? माइनस माइनस आउटसाइड, कहाँ से? नेचुरल लेंथ से एक्सएम तक उसको पुल किया, बस एक्स के तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट एक्सएम पुट हो जाएगी। दिस इज आल्सो एरिया अंडर द एफ एक्स ग्राफ, माइनस है ना, एरिया अंडर दिया, देखो एरिया माइनस भी है, नीचे की तरफ है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर, बट एनीवे इट इज एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। अभी जो बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने पॉइंट डिस्कस किए थे वो ये, एरिया से भी निकाल सकते हैं, ये माइनस के एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा तो ये एरिया आ जाएगा, नीचे का है ना एरिया, तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे, जो भी एरिया आ जाएगा, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव रहता है, नीचे वाला माइनस रहेगा। वैलिड फॉर कंप्रेशन आल्सो, ये कंप्रेशन में क्या होगा? माइनस आ जाएगा, माइनस एक्सएम आ जाएगा इस तरफ, कंप्रेशन में माइनस आ जाएगा, बट यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है तो डजंट मैटर, माइनस वाला भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए वैलिड फॉर कंप्रेशन आल्सो व्हेन एक्स इज लेस देन 0, बट स्क्वायर होने के बाद वो वही रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अगर तुमको बोला जाए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, वो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस है तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इज अपोजिट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी प्लस ऑफ दिस। इफ यू आर आस्क्ड टू राइट, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे? ये प्लस के एक्स होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस के एक्स, तो यहाँ पे प्लस के एक्स पुट कर देंगे, है ना, ये माइनस नहीं रहेगा तो प्लस आ जाएगा, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर अपोजिट, तो ठीक है। So this is the NCERT book method, work done by spring force. I have explained you. Just one more point and then wind up. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि spring force is conservative. Can we prove? Yes, we can prove it. Prove that spring force is conservative. अभी जो ऊपर डेरिवेशन किया था वही, work done by spring force from initial position xi to final position xf. यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर xi लिखना पड़ेगा, यहाँ xf लिखना पड़ेगा, तो माइनस है तो अपर लिमिट माइनस लो तो बाद में इंटरचेंज हो जाएंगी, बाहर माइनस रहेगा ना, तो ये माइनस है, अपर लिमिट पहले आती है लेकिन माइनस लगा तो अपर लिमिट माइनस होकर इस तरफ आ जाएगी,
तो ये हमने इंटीग्रेट किया, माइनस के बाहर निकाला, एक्स को इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट कर दिया अपर, माइनस लोअर, बाहर माइनस और शिफ्ट कर देंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस होके आगे आ जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इफ एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल, मतलब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई या इलांगेट हुई, ऐसे खींचा, यहाँ तक लेके गए, यहाँ से खींचना शुरू किया है, आगे और खींच के ले गए, फिर वापस ले आए, फाइनल वहीं पर आ गए। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पुट कर देंगे एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल, ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन विल बी 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज 0, देयरफॉर इट इज कंजर्वेटिव। है ना, क्लोज लूप के लिए व्हेन वी कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, तो वर्क डन शुड बी 0, जैसे ग्रेविटी में भी 0 होता है, इसमें भी 0 होता है। तो ये कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव है। तो somebody ask you prove that, तो यहीं से करना है, यही स्टेप ऊपर वाला। इंटीग्रेशन की नॉलेज चाहिए अपने को, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, दिस इज डन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सीखेंगे, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेशन करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एंड देन क्वेश्चंस हैं पोटेंशियल एनर्जी के, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, एंड सो ऑन। You want to ask anything? Shall I end it now if you don't have the doubt? बोलो, लास्ट पॉइंट पे मैं रोक देता हूँ यहाँ पर। टुडे वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, काफी कवर हो गया आज, अप टू हियर। Okay then, thank you. Are you there? Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you.